नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल इंग्लिश एंड टीवी। आज आप देखने वाले हैं ऐसा वीडियो क्लिप जो कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग को एक अलग ही लेवल पे ले जाएगा। तो शुरू करते हैं। Hey, Ryan, Monica, good. Did you know Schrader? No, I don't Yes, think so. we had a class. Oh, yeah. My shit was all crazy. I sat way behind you. I don't remember you either. माई शिट वॉज ऑल क्रेजी। उसके कहने का मतलब है आई वॉज ऑल क्रेजी शिट। क्रेजी शिट एक स्लैंग है। स्लैंग बोलचाल के वो अल्फाज होते हैं जिन्हें हम सिर्फ बोलचाल में ही इस्तेमाल कर सकते हैं, इन्हें लिखा नहीं जाता। जैसे कि अगर उसने आपके खिलाफ गवाही दी तो आप उसके पूरे खानदान को उड़ा डालेंगे। देखो, अगर वो वेटर को या करके बुलाए तो वहां से कट लेने का। इस अंधेरे में मैं कहाँ जाऊंगा, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। कहीं भी जाके मुंह मारना। बड़ा ही इंटरेस्टिंग फंडा है। 1200 से कुछ नहीं होता मास्टर, क्यों पकाने आ जाते हो? इसके अलावा कान के नीचे देना, सिर खपाना, लोचा करना, ये सभी स्लैंग्स हैं। अब मैं दूंगा एक घुमा के ना, जबड़ा घूम जाएगा, सारी जिंदगी रिवर्स में गाड़ी चलाइयो। हाँ, ये भी। इन्हें हम अपने बोलचाल के मजाक के लहजे में इस्तेमाल करते हैं, कभी लिखने में इनका इस्तेमाल नहीं करते। क्रेजी शिट भी एक ऐसा ही स्लैंग है। किसी भी चीज़ को लोअर क्वालिटी या घटिया दर्जे को बताने के लिए हम उसे सीधे सीधे क्रेजी शिट कह देते हैं। जैसे देखो, वो आ गया अपना खटारा स्कूटर लेके, लुक हियर ही कम्स विद दिस क्रेजी शिट। और ये सब के फालतू काम कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग दिस ऑल क्रेजी शिट। काफ़ी बदतमीजी भरे शब्द है ना। आप इसके अलावा नॉनसेंस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, जैसे लुक हियर ही कम्स विद दिस नॉनसेंस स्कूटर, और व्हाट आर यू डूइंग दिस ऑल नॉनसेंस। इस क्लिप में लड़का क्रेजी शिट बोलते समय अपनी खुद की तरफ इशारा कर रहा है, मतलब वो अपने आप को कम अकलिया बुद्धू बता रहा है। My shit was all crazy. I sat way behind you. I don't remember you either. Sorry. Sorry. Anyway, I really wanted to ask you something. Sure. Anything. I know it's really late, but last minute and everything, but prom is okay. coming up soon, you know, Yes. and I'm actually having a party at my house beforehand. Prom is the abbreviation of promenade. Abbreviation means short form. Prom is the yearly celebration held by the school when the senior most students of the school are gonna pass out from there. In India, we call it the farewell party. One more thing is here, in America and the other developed countries, colleges are commonly called schools. However, high schools. And we all know in India, 10th class is called high school. So henceforth, if you face any high school pass American in the future, don't seem like, रात तेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा तो हमारा बमन पहलवान का छोरा है। तेरी बात तो है कम से कम। But prom is coming up soon, you know, Yes. and I'm actually having a party at my house beforehand. Awesome. And I was wondering if you'd like to, if you could, I'd love to. mow our lawn. Mow your lawn. Yeah. Oh. This grass cutting process is called mowing, and this machine is called mower. And I was wondering if you'd like to, if you could, I'd love to. mow our lawn. Mow your lawn. Yeah. Oh. I'm sorry. Yeah, I'm really embarrassed, but our mower's broken, and my mom's just like, ask Bartleby. That's cool. Tell your mother I would love to mow the lawn. Really? Of course. Thank you so much. Thank you. Hey, yo, Monica, come on. Sorry, I gotta go, but thank you again. You're Sure. really helping us out. And it was nice to see you. Yes, Talk it to was. you. It was so nice Yeah. catching up with you. Okay, bye-bye. Bye, Monica. Hey, I'm sorry to keep you waiting. Catch up with is a phrasal verb which means to meet someone after a certain period of time. यानी किसी से कुछ समय बाद मिलना। अब ये कुछ समय 5 मिनट भी हो सकता है, 1 हफ्ता भी हो सकता है, 1 महीना भी हो सकता है, या 1 साल भी हो सकता है। जब हम किसी से कुछ समय बाद मिलते हैं तो दोस्ताना अंदाज में उससे कहते हैं नाइस टू कैच अप विद यू या नाइस कैचिंग अप विद यू। एक एग्जांपल देखते हैं। My name's Jack Ryan. I'd like to talk to you about your father. I'll catch up with you later. इस सीन में जब डिटेक्टिव जैक रियान इस लड़की से कहते हैं आई नीड टू टॉक टू यू अबाउट योर फादर, यानी मुझे तुम्हारे पिता के बारे में कुछ बात करनी है, तो ये लड़की अपने साथ में बैठे हुए इस दोस्त से कुछ समय बाद मिलने के लिए कहती है। तो वो इस बात को ऐसे कहती है I'll catch up with you later. I'll catch up with you later। अच्छा, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप हमेशा I'll catch up with you ही बोलें। I'll see you again later या I'll meet you again later बोल सकते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं I'll join you later। मेरा आपको ये बताने का सिर्फ इतना मकसद है कि जैसे आप अपनी खुद की नेटिव लैंग्वेज में एक ही बात को कई तरीकों से कह सकते हैं, वैसे ही आप इंग्लिश में भी कर सकें। आगे बढ़ते हैं। Thank you so much. Thank you. Hey, yo, Monica, come on.
Sorry, I gotta go, but thank you again. Sorry, I gotta go, but thank you again. Gotta is reduced sound of got to. Got is a word which is sometimes used as a replacement of have. For example, if you say I have a car, I've got a car, and I got a car, all three means same. इन तीनों का एक ही मतलब है। हाँ, अगर आप अभी भी इंग्लिश सीख रहे हैं तो फिर आपको शायद इनके मतलब अलग अलग लगे। I have a car यानी मेरे पास कार है, I have got a car यानी मुझे कार मिल गई। अब आप खुद ही सोचिए, अगर आपको कार मिल भी गई है तो भी तो कार आपके पास ही है ना, यानी घूम फिर के आप फर्स्ट लाइन ही कह रहे हैं लेकिन अलग वर्ड्स में। So, I gotta go means I have to go, मुझे जाना है। I gotta talk, मुझे बात करनी है। I gotta run, मुझे भागना है। I have got to talk to you, Mr. Provolone. I gotta run. Sorry, I gotta go, but thank you again. You're really helping us out. And it was nice to see you. Talk to you. It was so nice Yeah. catching up with you. Okay, bye-bye. Bye, Monica. Hey, I'm sorry to keep you waiting, baby. Hoyt Ambrose. Hoyt. Hoyt Ambrose. What's that guy got that I don't have? क्या वो समझ में नहीं आया? और सब टाइटल भी नहीं है। असल में यही वो डायलॉग है जिसकी वजह से आज ये वीडियो क्लिप चुनी थी हमने आपके लिए। यहाँ पर ये कह रहा है व्हाट्स दैट गाय गॉट दैट आई डोंट हैव। याद है लेटर टी के प्रोनाउंसिएशन के बारे में हमने पिछले एपिसोड में कुछ बातचीत की थी, याद नहीं आ रहा? तो साथ में देखते हैं। पॉइंट नंबर 2, नेटिव्स कीप द लेटर टी साइलेंट व्हेन इट्स नॉट फॉलोड बाय एनी वर्बल, just like I did here. Let's come to the point number 2. Here, the next letter after T is N, so the speaker suppresses the sound of T. Now it is moving to point number 2. Point number 2. T उस हर जगह साइलेंट होता है जब भी इसके बाद कोई वावल नहीं आ रहा होता। तो यहाँ पर ये T साइलेंट है और ये T साइलेंट है। अब मैं इसे पढ़ता हूँ। Was the guy got? अब ये वाले टी का साउंड मेरे मुंह से बाहर निकलने वाला था कि इसके बाद कोई वावल मिला नहीं, तो ये मुंह में ही दबा रह गया, यानी कि सप्रेस हो गया। उसके बाद ये वाला टी भी साइलेंट है, दैट आई डोंट हैव। ये टी साइलेंट इसलिए नहीं है क्योंकि इसके बाद एक वावल आ रहा है, ये दोनों कनेक्ट हो जाते हैं और बन जाते हैं दैट आई। ये टी और ये टी साइलेंट नहीं हो सकता क्योंकि ये द साउंड है, आपको तो याद ही है। Remember, we are not considering here the special sounds with T, like TW, TR and TH. TW, TR और TH इन तीनों के साथ मिलकर T एक स्पेशल तरह का साउंड क्रिएट करता है, तो इनके साथ तो कभी साइलेंट हो ही नहीं सकता। हाँ, लेकिन उस हर जगह साइलेंट हो सकता है जब इसके बाद कोई वावल नहीं आ रहा होता है। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन तो नहीं आपको? What's that guy got का मतलब क्या है? असल में what's रिड्यूस फॉर्म होता है what has का। अच्छा, what's जो है what has का भी रिड्यूस फॉर्म होता है और what is का भी रिड्यूस फॉर्म होता है। अब ये बोलने वाले की पूरी बात सुन के पता चलता है कि वो what has है, ये what is है। अब आप खुद ही देखिए, यहाँ पर साथ में got भी है, तो इसके साथ तो got होता नहीं है, तो ऑब्वियसली वो has got बोल रहा है। What has that guy got? अच्छा, अभी 2 मिनट पहले ही हमने जाना था कि has और have के साथ जब got होता है तो वो बस यूं ही एक सपोर्टर की तरह होता है, उसका कोई मीनिंग नहीं होता असल में। तो what has the guy got का सीधा सीधा मतलब है what has that guy, यानी उसके पास क्या है that I don't have, जो मेरे पास नहीं। Bye, Monica. Hey, I'm sorry to keep you waiting, baby. Hoyt Ambrose. Hoyt. Hoyt Ambrose इस गाड़ी वाले बंदे का नाम है। Hoyt Ambrose. What's that guy got that I don't have? I just need to get a car. And classic good looks. अब शायद आपका सवाल है, ये सब जान करके आपका क्या फायदा? हाँ, होता होगा साइलेंट, तो क्या फ्लुएंसी कैसे आएगी? अब आपकी स्क्रीन पर जो लिखा है इसे पढ़िए। चलिए मैं पढ़ता हूँ। मैं अभी वहां पहुंच रहा हूँ। थोड़ा अजीब लग रहा है ना? फिर से एक बार बोलता हूँ, मैं अभी वहां पहुंच रहा हूँ। सब कुछ तो मैंने वैसे ही बोला जैसा लिखा हुआ है, तो फिर ऐसा कॉमेडियन जैसा फील क्यों आ रहा है? फिर से कोशिश करता हूँ, मैं अभी वहां पहुंच रहा हूँ। ये ठीक था शायद, क्योंकि स्मूथ था ना। मैंने आखिर बोला क्या? मैं अभी। इन दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया और बन गया मैं अभी। वहाँ, मैं ह को उड़ा दिया, बन गया वहाँ। पहुँच को बना दिया पहुँच, और रहा हूँ को मिला दिया और बना दिया रहा हूँ। मैं अभी वहाँ पहुँच रहा हूँ। लिखा चाहे कुछ भी हो, लेकिन बोलते समय हम शब्दों को आसान बना करके बोलते हैं। हम चाहे हिंदी बोले, पंजाबी बोले, तेलुगु बोले, बंगाली बोले, उर्दू बोले, इस तरह के रुकावट पैदा करने वाले अल्फाज हमारे सामने बार बार आते हैं।
लेकिन इनसे निपटना हम अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि बचपन से यही शब्द हम बार बार बोलते चले आ रहे हैं और हमें इन शब्दों की आदत पड़ चुकी है। लेकिन इंग्लिश में ऐसा करने के लिए हमें सीखना पड़ता है। अब आप इस लाइन को पढ़िए, आई कांट डू दैट, इट्स अगेंस्ट माई पॉलिसी। अब इसे थोड़ा स्पीड में बिना रुके बोलने की कोशिश कीजिए। चलिए रहने दीजिए, हम दोनों इस बात को जानते हैं कि इस लाइन को फास्ट बोलना इतना आसान नहीं है। अगर स्पीड में बोलते भी हैं तो कुछ ऐसी फीलिंग आएगी। हमें इन वर्ड्स को कनेक्ट करने की जरूरत है ताकि स्पीकिंग स्मूथ हो जाए। आई कांट डू दैट इज अगेंस्ट माई पॉलिसी, बिल्कुल स्मूथ एकदम। अगर आप वर्ड्स को ठीक से कनेक्ट करना जान जाते हैं तो आप फास्ट नहीं भी बोलेंगे तो भी सामने वाले को सुनने में ऐसा लगता है कि आप काफी फास्ट बोल रहे हैं। आई एम सॉरी सर, आई कांट डू दैट, इट्स अगेंस्ट माई पॉलिसी। मैंने बोला क्या? जैसा भी बाडल भी ने सिखाया था। रुकावट पैदा करने वाले सारे टी मैंने छोड़ दिए। जैसे आई कांट के टी को छोड़ दिया, इट्स अगेंस्ट इस टी को भी छोड़ दिया और इस टी को भी छोड़ दिया। अब ये बन गया इस अगेंस्ट माई पॉलिसी। अब इन दोनों लाइन्स को बोलिए, क्या स्मूथ मक्खन की तरह बोलते हैं। आई कांट डू दैट इज अगेंस्ट माई पॉलिसी। हिंदी में भी लिखते भैया हैं लेकिन बोलते भैया हैं, लिखते हैं कौवा लेकिन बोलते हैं कौआ, क्योंकि कौवा बोलना आसान है। लिखने का और बोलने का तरीका अलग अलग ही होता है, चाहे लैंग्वेज कोई भी हो। भाई देख नहीं रहा है मैं गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहा हूँ। अगर आप सारा दिन ऐसे ही बोलते रहे तो आपकी तो जबान में दर्द हो जाएगा। अरे कहना क्या चाहते हो? कहना बिल्कुल साफ है। हर लैंग्वेज की तरह इंग्लिश में भी रुकावट पैदा करने वाले अल्फाज यानी कि लिंगुअल ऑब्स्टिकल्स होते हैं, जैसे कि टी, डी, आर, एच। समय समय पर इनके साउंड्स को या तो सप्रेस कर दिया जाता है या कंप्लीटली साइलेंट कर दिया जाता है या फिर मॉर्फ कर दिया जाता है या फिर यूं कह लें कि कन्वर्ट कर दिया जाता है किसी दूसरे साउंड में। जैसे टी का साउंड डी में कन्वर्ट हो जाता है जब इसके दोनों तरफ वावल होता है। आप खुद भी करते हैं, जैसे आप गेट आउट को गेट आउट बोलते हैं। देखिए टी के दोनों तरफ वावल है। व्हाट अ शॉट को व्हाट अ शॉट बोलते हैं, दोनों तरफ वावल है, डी साउंड। ब्यूटीफुल को ब्यूटीफुल बोलते हैं, ये भी डी साउंड। इससे स्पीकिंग स्मूथ हो जाती है। ठीक उसी तरह राइटिंग को बोलते समय राइडिंग बोलते हैं, और ये तो राइडिंग होता ही है। अभी बोलने वाले के पूरे सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा राइडिंग बोल रहा है। आई एम राइडिंग अ लेटर और आई एम डूइंग अ हॉर्स राइडिंग। एक और बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ, तब आप बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। इस सीन में वेनेलोपी ने रैल्फ का एक मेडल ले लिया है जो ये इसे वापस नहीं कर रही है। रैल्फ ने इस मेडल को बहुत मेहनत से जीता था तो ये अपना मेडल वापस मांग रहा है। अब इस कन्वर्सेशन को आप ध्यान से सुनिए। It is a medal. Coin, medal, whatever. Just go back to your own dumb game and win another one. I can't. I didn't win it in my game. I won it in Hero's Duty. Hero's duty? It's not that kind of duty. रैल्फ कहता है I won this medal in hero's duty। हाँ यहाँ पर Y है लेकिन इसमें साउंड तो वावल का ही है ना, डू डी, ई का साउंड आ रहा है। लेकिन वेनेलोपी उस पर हंस पड़ती है क्योंकि वो उसे ये डूडी समझती है, which means the feces of small animals or kids। Hero's duty? It's not that kind of duty. I bet you really gotta watch where you step in a game called Hero's Duty. यहाँ पर भी वही है जो हम अभी इतनी देर से सीख रहे हैं। वेनेलोपी ने इस टी को छोड़ दिया है। और गॉट टू के बारे में भी हम पीछे काफी डिस्कस कर चुके हैं। गॉट टू मीन्स हैव टू। आई बेट मैं शर्त के साथ कह सकती हूँ, यू हैव टू वॉच वेयर यू स्टेप इन। तुम्हें देख देख के कदम रखने पड़ते होंगे। ऑब्वियसली डूडी है ना। अच्छा आप खुद ही देखिए, इस टी को अगर हम साइलेंट कर दें और इस गॉट टू को गॉडा बना दें तो स्पीकिंग कितनी स्मूथ हो जाती है। आई बेट यू गॉटा वॉच वेयर यू स्टेप इन। यह है फ्लुएंसी का कीवर्ड। बोल के देखिए। I bet you really gotta watch where you step in a game called Hero's Duty. What'd you win the medal for? Wiping? What you win the medal for? ज reduce sound होता है did you का। इसके बारे में भी हमने पिछले वीडियो में सीखा था। मैं इस वीडियो की बात कर रहा हूँ। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा तो एक बार देख जरूर लीजिए, इसमें आपके सीखने के लिए काफी कुछ है। तो what you win the medal for means what did you win the medal for? तुमने मेडल किस वजह से जीता था? वाइपिंग की वजह से। वाइपिंग बोलते हैं पोंछने को या गीले कपड़े से साफ करने को। What'd you win the medal for? Wiping? इसके अलावा टी
जब एन के बाद आता है तो वो डबल एन साउंड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे सेंटीमीटर को बोलते हैं सेंटीमीटर, अपॉइंटमेंट को कहते हैं अपॉइंटमेंट, प्रिंटिंग प्रेस को बोला जाता है प्रिंटिंग प्रेस, और जेंटलमैन बन जाता है जेंटलमैन। Anyway, I really wanted to ask you something. Sure. Either here we see letter T is following letter N. So it will also be spoken with double N sound, one N instead of wanted. Anyway, I really wanted to ask you something. We interrupt programming to bring you this breaking news bulletin. We interrupt programming to bring you this breaking news bulletin. इसके अलावा कुछ वर्ड्स को मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर से डिनोट किया हुआ है और उनको यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, ये सोच करके कि शायद आपको इनके बारे में पहले से पता हो। लेकिन फिर भी अगर आपको इन वर्ड्स के बारे में कुछ कंफ्यूजन है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा। हमें सब्सक्राइब करना नहीं करना तो आपका पर्सनल डिसीजन है, लेकिन हाँ, हमसे जुड़े रहने की रिक्वेस्ट तो मैं कम से कम कर ही सकता हूँ। अगले एपिसोड में हम किसी और मूवी क्लिप को एनालाइज करेंगे और बनाएंगे अपनी इंग्लिश को और भी बेहतर। लेकिन तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, क्योंकि मुस्कान इस दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है।